We have Babar Azam, Pakistan's test captain, here with us, and Babar has been kind enough to take time out for this pre-series press conference. The Australia-Pakistan test series, in fact, the Pakistan-Australia Benu Qadir Trophy starts tomorrow in Rawalpindi. Unfortunately, today's practice has been cancelled because of the rain in Rawalpindi, Islamabad. I'll ask my colleagues from Australia to go ahead and they can have the first two questions. We'll have the questions in English. Then we'll take a statement from Babar in Urdu, and then we'll move on to Urdu. So questions in English first, please. Melinda, I believe you want to go first? Sure. Thank you very much, Ahmad, and thank you, Baba. I guess, Jay, it's been an interesting one in that there has been so much attention focused on the Australian team. So how's this week been for you? You've been under the radar almost with them being sort of under so much attention. डेफिनेटली हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और जिस तरह 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आई है और हमने जिस तरह प्रिपरेशन किया है, हमारे जो टेस्ट वर्क के प्लेयर्स थे उन्होंने कराची में अपना कैंप लगा था और उसमें उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला और टेस्ट की पूरी तैयारी की और उसके बाद जब हमने ज्वाइन किया तो हमने भी 3 दिन यहाँ पे पूरा यूटिलाइज़ किया पूरा फोकस के साथ और बिल्कुल हमारे काफ़ी अच्छे मैचेस होंगे और हम पूरा फोकस होके और पूरा कंसिस्टेंट हमारी जो हमारी मोमेंटम है हम उसको कैरी ऑन करेंगे और इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया टीम को. Thank you. I'll ask Emma to translate for me later. So yes, I'll now translate this. Babar said that, of course, we are very excited that Australia are over. We have practiced really hard, starting off in Karachi with a camp there for test players, followed by the preparations here in Rawalpindi, and things are pretty much heading in the right direction. Of course, it's not the case that Australia, of course, they are here. There's a lot of attention, yes, but that doesn't mean that the home side is very much, or if I can quote you, under the radar. They have prepared well. They know the significance of this series, and that's why the players are excited. They want to play Australia. They have prepared well, both in Karachi and Rawalpindi, and are looking forward to the series. Melinda, I hope this helps. Yes, thank you very, very much. Okay. Peter Layler, if you have a question. Yes, I do. Thank you for asking. Do you have a team for us? Can you name the team? Team. Babar, I believe team तो हमारी final नहीं है. वो हम उनको कह सकते हैं कि we are still preparing the competition. Yeah, we are not preparing yet. So we are deciding tomorrow when we see pitch again and then decide it. Can I just ask you? Do you think? Yeah. Can I just ask? Do you think that pace is more important on this wicket than on other wickets in Pakistan? जी बाबर, वो पूछ रहे हैं कि क्या पेस का ज़्यादा आपको लगता है रोल होता है इस पिच पे कंपेयर टू अदर वेन्यूज पाकिस्तान की? क्या फास्ट बॉलर्स ज़्यादा पिंडी में साजगार होते हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है और यहाँ पे पिंडी में थोड़ा सा पेस को थोड़ा सा हेल्प मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिनर्स का भी काफ़ी अहम रोल होता है, तो मेरे ख्याल से दोनों को कंबाइन हेल्प मिलती है. So, thank you, Babar. He's saying that yes, pace might have a role, but it's a good wicket generally, which helps both pace bowlers and spinners, as well as it's a good batting track. So not out and out a question of pace maybe being favoured here in Pindi. I hope this helps, Peter. Thank you very much. Welcome. Okay, now we'll move on to Urdu questions, and before that, I'll request Babar to provide his opening statement. Babar से मैं सवाल कर लेता हूँ. बाबर, कुछ बताएं प्रिपरेशंस के बारे में. कराची में ऑफ कोर्स टेस्ट प्लेयर्स का कैंप लगा काफ़ी एक्सटेंसिव, फिर आप लोग सारे यहाँ पे रावलपिंडी में आए. पिछले 3 दिन से बहुत मेहनत की है. 3 साढ़े 3 घंटे के हमारे सेशंस हुए हैं. कुछ बताइए तैयारी कैसी है, फ्रेम ऑफ माइंड है, और ऑफ कोर्स ये एक बड़ी सीरीज़ है, तो आपका माइंडसेट क्या है और टीम का क्या माइंडसेट? हाँ बिल्कुल माद भाई, जिस तरह हमारी प्रिपरेशन हुई है, जिस तरह टेस्ट प्लेयर्स ने कराची में कैंप लगा उनका, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला और जितना हो सके हुआ कि उन्होंने कंडीशन को यूटिलाइज़ किया और होम कंडीशंस हैं. और उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमने भी काफ़ी इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया. जितने भी हमारे पास दिन थे उनको हमने यूटिलाइज़ किया, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए होता है, डिफरेंट आपकी सोच होती है, डिफरेंट आपको बैटिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ती है. तो उसी को हम थोड़ा सा ज़्यादा हमने टाइम लिया थोड़ा सा, क्योंकि T20 से आए थे तो हमने हमारे पास 3-4 दिन थे, तो हमने उसको यूटिलाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन गुड शेप.
पूरी टीम और पूरा बिलीव है और काफ़ी एक्साइटेड हैं और टफ मैचेस होंगे जिस तरह हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है पिछले जो टेस्ट मैच में हम बांग्लादेश खेल के हैं उसी मोमेंटम को हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी होम कंडीशन को यूटिलाइज़ करें और टफ टाइम दें। और दूसरा ये कि बिल्कुल हमारा थोड़ा सा पिछला वीक हमारे जो मेन प्लेयर्स है थोड़ा वो इंजरीज के शिकार हुए, कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ लाइफ है तो ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। तो मेरे ख्याल से जितना एज टीम एज कप्तान मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बिलीव है मुझे कि इंशाल्लाह ये चीज़ों को हम साइड पर रख के हम फोकस करें क्रिकेट को और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम फोकस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर। we'll move on with the questions और I think आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा बाबर खुद भी ऑलराउंडर बन गए जिस तरीके से वो ऑफ स्पिन करें कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। थैंक यू सो मच बाबर। मैं उर्दू के क्वेश्चंस अब दूंगा। रशीद शकूर सबसे पहले, उसके बाद जाहिद फारूक मलिक, फिर माजिद भाई। जी रशीद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, आपने जिस तरह कहा कि जो बांग्लादेश की जो सीरीज भाई आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, उनकी आ रही है। जी आ रही है। वालेकुम सलाम। जी मैं ये कह रहा था बाबर कि मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ बाबर, मैं ये कह रहा था जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश के खिलाफ जो जीत थी उस मोमेंटम को लेकर चलेंगे, लेकिन बीच में पूरा एक महीना एक डिफरेंट फॉर्मेट आप उसमें इन्वॉल्व रहे, मतलब पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है कि एक पूरा महीना एक पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं T20 और अब फिर मतलब कुछ दिनों के बाद फिर आप उसी टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में आए, तो ये कितना डिफिकल्ट किसी भी खिलाड़ी के लिए और एज ए कैप्टन। और दूसरा मतलब जिस तरह की PSL आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही बहैसियत कप्तान भी, तो वो प्रेशर से खुद किस तरह निकलने के बारे में कॉन्फिडेंट? थैंक यू। देखें एज अ प्रोफेशनल आपको डिफ़िकल्ट नहीं होती क्योंकि आपके पास पूरा शेड्यूल पूरा ईयर का शेड्यूल होता है और जिस तरह हमारी बैक टू बैक सीरीज़ और ये PSL चल रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह टेस्ट मैच और फिर हमारा PSL आया और उसके बाद हमारे पास ये टेस्ट सीरीज़ है, तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल आपको एज ऐसा कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होती। सिर्फ माइंडसेट की गेम है और जितने भी प्लेयर्स हैं सबको पता था कि हमारे टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर भी हुए हैं। वो ड्यूरिंग PSL उस चीज़ की भी प्रिपरेशन हो रही थी कि जहाँ पे वो हम अगर बात करें फास्ट बॉलर की, जहाँ वो 4 ओवर कर रहे थे वो अपनी प्रैक्टिस में वो 6 ओवर कर रहे थे या 7 ओवर कर रहे थे कि प्रिपरेशन हो हमारी टेस्ट मैच में। जब हम टेस्ट मैच में आए तो उस चीज़ के लिए हम रेडी हों। तो ये सब फास्ट बॉलर्स ने, बैट्समैनों ने अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है, तो ये साथ साथ चीज़ें चलती रही हैं क्योंकि अब देखें क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जितना आप इसको उसमें मेरे ख्याल से फिटनेस का भी काफ़ी है कि अपने आप को फिट रखेंगे क्योंकि बैक टू बैक सीरीज़ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से लड़के प्रिपेयर हैं और रेडी हैं। देखें दूसरा ये कि मुझे ऐसा कोई फील नहीं है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और पास में मैं फ्यूचर में रहता हूँ, जो गुजर की चीज़ें उसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। जो गुजर गया, जो आने वाला है उस पर मैं फोकस करता हूँ। थैंक यू बाबर। जाहिद फारूक मलिक, फिर माजिद भट्टी प्लीज। सबसे पहले तो कैप्टन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है एक ऐसी लेगेसी के साथ कि वो उसने इंग्लैंड को हराया है। आप लोगों को होम ग्राउंड का एडवांटेज तो है, बट आप यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना प्रॉब्लम्स एंड फिटनेस प्रॉब्लम, तो ये चीज हैवी तो नहीं होगी। और आप नंबर 1 भी हैं और प्राउड भी है पाकिस्तान का। अपनी फॉर्म के बारे में भी जरा कौम को बता दें। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह कोविड के केसेस चले हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिटनेस का भी इशू चला है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और मेरे ख्याल से इसमें जितना हमारे पास बेस्ट 11 होगी या बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और इस पर हम ये नहीं है कि ये वो प्लेयर नहीं है तो क्या होगा या ये नहीं है तो फिर क्या होगा। मैं एज अ कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा बिलीव है मुझे कि पूरी टीम पे कि मेरे पास बेस्ट 11 होगी और उससे हम फाइट करेंगे। और परफॉर्मेंस की जहाँ की बात रही, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और अपना जो बेस्ट है वो दूंगा मैं। बाबर पिछले साल जब आपने जी पिछले साल जब आपने यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिंडी टेस्ट खेला था, तो ये पिच तकरीबन वैसी ही नजर आ रही है सामने से। अब आपने करीब से देखा है, आप बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। अब आपने कहा कि हमने अभी तक अपनी टीम फाइनल नहीं की, तो उस वक्त तो पाकिस्तान 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के साथ गया था। क्या इसी तरह है कि तकरीबन वैसी ही पिच है और तकरीबन वैसी ही प्लानिंग होगी कि 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान जाए?
देखें बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस होंगी और हमने सिर्फ ये देखना है कि वेदर थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट वीक का क्या है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। तो फाइनलिंग टच हम इंशाल्लाह सुबह जाके देखेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो गई है और जिसकी वजह से हम ग्राउंड नहीं जा पाए। तो हम फाइनल जाके ग्राउंड में देखेंगे और फिर इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे फाइनल 11। जी सवाल करूं? माजिद भाई। जी इमाद जी सवाल कर लें प्लीज। हो गया? मैंने नहीं, ये अब्बास शबीर बीच में पूछ रहा है, मेरा हो गया, थैंक यू। अच्छा सॉरी जी, मेरा कनेक्शन थोड़ा वो हो रहा है। अब्बास करें आप जी। जी थैंक यू वेरी मच माद, थैंक यू वेरी मच बाबर। इससे पहले आप टेस्ट क्रिकेट खेले, आपके जो कोचेस थे वो मिसबा थे, वकार थे, डिफरेंट कोचेस के साथ आप नई सीरीज खेलने जा रहे हैं, एक बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं, कोई चेंज महसूस हो रहा है? और कौन से कोचेस ज्यादा काम कर रहे हैं आपकी फिटनेस के ऊपर? दोबारा से देखें, बैड पैच तो पूरी दुनिया में हर प्लेयर पर आता है, उसकी वापसी के लिए क्या काम हो रहा है? देखें कोचिंग स्टाफ जो भी होता है वो अपना 100% देता है। इवन के जो भी एरा आया और उसने अपना 100% दिया है, और इस जो अभी कोचिंग स्टाफ है वो भी अपना 100% दे रही है, और सबका मोटिव यही होता है कि पाकिस्तान जीते। तो उसमें जो भी है, हम प्लेयर्स भी यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा फोकस ये होता है कि हमने बेस्ट कैसे देना है, और कोचेस से भी यही होता है कि हम प्लेयरों को रेडी करें और वो अपना बेस्ट दें, और जो भी रहा उसमें सबका इकट्ठे रहना और सबका बिलीव एक ही होता है। तो बिल्कुल हमने इस पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बांग्लादेश वाली सीरीज़ काफ़ी अच्छी गई हमारी, और उसमें हमने काफ़ी एज अ टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और बिल्कुल इस सीरीज़ में भी हम इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और टफ़ टाइम देंगे, और हम रेडी हैं और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। अच्छा जी। अच्छा जी, गफ़ार, अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, गफ़ार, और उसके बाद बदियुज़्ज़मान। बहुत शुक्रिया इमाद। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, यासिर शाह बड़े जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के मादी में, और उनकी बड़ी कारकर्दगी है। जरूर उनके इंजरी का इशू था, कुछ अपडेट कीजिएगा कि सेलेक्टर्स की और आपकी कप्तान की क्या मुशावरत है उनके हवाले से, और वो रिजर्व के अंदर है तो मतलब है शायद वो फिट तो हैं, लेकिन वो 15 में नहीं है। कोई रोल देखते हैं आप इस सीरीज में उनका, क्योंकि इस जहाँ तक मुझे पता है शायद वो अभी टीम के साथ भी नहीं है। शुक्रिया। देखें यासिर शाह की इंजरी का इशू चल रहा था और थोड़ा फिटनेस का इशू चल रहा था, और उनको कैंप में बुलाया गया था और उन पे काम भी किया गया, और बिल्कुल वो अभी रिजर्व में है और उस पर उनको मज़ीद काम किया जा रहा है, क्योंकि वो पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीनों में उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो उस पर वो उनको बैक टू नॉर्मल आने के लिए उनको फिटनेस पे काम दिया जा रहा है। और देखें जिस तरह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारा लेग स्पिनर, उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं। बिल्कुल इस पे हमारी नज़र है, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे, और मेन थिंग ये कि पहले वो अपना 100% फिट हों, फिर हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे। जी बदियुज़्ज़मान। अच्छा बाबर, आवाज आ रही है एकदम जो है आवाज आ रही है बाबर? आ रही है, अभी अब आ रही है, आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है, आ रही है। हेलो जी। अच्छा बाबर, मेरा सवाल है कि पीएसएल से एकदम टेस्ट मैच में आए, क्या अर्से के लिए कप्तान रहे, सरफराज ने भी बहुत कम कप्तानी की, 1-2 सीरीज अगर हार जाते तो कप्तान को हटा दिया जाता है। क्या आप समझते हैं कि कप्तान टेस्ट मैचेस के लिए लंबे अरसे के लिए होना चाहिए, ताकि वो टीम की फतवात में मुसलसल जो है वो फतवात की राह पर गामजन कर सके? देखें ये अभी इस बारे में ना मैंने सोचा है कि ना मैं किसी को कहूँगा कि वो लंबे अरसे पे के लिए रहना चाहिए। कोशिश यही होती है कि जो सी सीरीज़ हो वो जीती जाए। एज अ कप्तान मैं प्लेयरों से परफॉर्मेंस दूँ और उस परफॉर्मेंस से मैं पाकिस्तान को मैच जिताऊँ, और ये चीज़ मेरे ख्याल से बिलीव यही रखता हूँ कि आप अच्छा करते रहें और एज अ टीम आप अच्छा करते रहें तो आपके लिए चीज़ें इजी रहती हैं। और ये बात की चीज़ें हैं कि कप्तान लंबा रहना चाहिए या कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी देते रहें तो आप चीज़ें आपके साथ साथ चलती रहती हैं। शायद हाशमी और साद अब्बासी।
शायद भाई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बाबर अस्सलाम वालेकुम। बाबर, वालेकुम दो अस्सलाम। चीजें हैं कि ये बताएं कि हसन अली और फहीम अशरफ के ना होने से कितनी कमजोर हुई है टीम, कितना नुकसान होगा, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है, उसको कैसा ओपोनेंट देखते हैं आप? डेफिनेटली काफ़ी हमारा जो कम्बिनेशन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है फ़हीम और हसन की वजह से, और हमें वो फ़हीम बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में हमें वो कंट्रीब्यूट करता था, और हसन आपको पता है कि उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। लेकिन कोशिश यही है कि बेस्ट कम्बिनेशन खिलाया जाए, और जिस तरह शहीन फॉर्म में है, नसीम शाह, और हमारे जो बैट्समैन हैं टॉप बैट्समैन है जिस तरह अज़हर अली हो गया, और स्पेशली फवाद आलम और रिजवान जिस तरह फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह पूरा मैं पूरी उम्मीद हूँ एज ए कप्तान कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और टफ़ टाइम देंगे। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया, और आप उनको इजी नहीं ले सकते, उनके काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से प्लानिंग की है उनके अगेंस्ट, और इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बाबर, बहुत शुक्रिया आपका।